ہم بارہا اس بات کا ذکر کر چکے ہیں کہ جیسے اس حکومت کا ایجنڈا ہی یہ ہے کہ کسی طرح اسرائیل کو تسلیم کیا جائے، دنیا کی معیشت پر جو یہودیوں کا قبضہ ہے، پاکستان اور جنوبی ایشیا کی معیشت پر یہودیوں کے براہ راست قبضے کے لیے راستے ہموار کیے جائیں، اور عمران خان کی حکومت کا ایجنڈا بھی یہی ہے کہ یہودی دنیا کی معیشت پر قبضہ کرنے کے راستے کھولے جائیں اور اس میں ان کی معاونت کی جائے۔ لیکن انشاءاللہ العزیز حریت پسند مسلمان اور اس خطے کا حریت پسند انسان وہ یہود کی اقتصادی غلامی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے وہ قادیانی طبقہ جو آئین کا انکار کرتا ہے، آج اگر کوئی کہتا ہے میں آئین کو نہیں مانتا، آئین کے ایک شق کو نہیں مانتا، ہم اسے غدار کہتے ہیں۔ اگر صوفی محمد ایسی بات کرتا ہے تو اس پر غداری کے مقدمے لگائے جاتے ہیں۔ لیکن پاکستان کی تاریخ میں ایوان کے اندر اگر کوئی سب سے پہلی ترمیم متفقہ ترمیم کی صورت میں پاس ہوئی ہے تو وہ قادیانی فرقے کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کی صورت میں پاس ہوئی ہے۔ یہ آئین کا تقاضا ہے جو ہم بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں، کبھی قومی اقتصادی کونسل بنایا جاتا ہے اور اس میں قادیانی کو بطور رکن شامل کیا جاتا ہے، عوام کا رد عمل آتا ہے تو اس کو واپس کر لیتے ہیں، اور جب واپس ہو جاتا ہے تو کونسل ہی ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی ان کو پاکستان کے اقتصادیات میں دخیل کرنے کی دلچسپی اس حد تک ہے موجودہ حکومت کی کہ یا تو وہ کونسل میں ہوں گے ورنہ پھر کونسل غیر مؤثر ہوگی۔ آج پھر جب اقلیتی کمیشن بنا تو پھر انہوں نے اس میں قادیانی کو اس کا ممبر بنایا، یقیناً اس پر ایک رد عمل آیا اور ان کو یہ فیصلہ واپس لینا پڑا۔ لیکن ساتھ ساتھ ہمارے اسکولوں میں، تعلیمی اداروں میں نصاب میں تبدیلی کی کوشش کی گئی تاکہ نئی نسل وہ ختم نبوت کے عقیدے سے جاہل رہے، اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ ہمارے اسلام کے اندر عقیدہ ختم نبوت کا مقام کیا ہے۔ تبدیل کرتے ہیں، پھر واپس لے لیتے ہیں، لیکن اس کی ذہنیت کا اندازہ تو لگ جاتا ہے کہ حکومت کی اپنی خواہش کیا ہے۔ لہذا اس حوالے سے بھی قوم کو جاگے رہنا چاہیے۔ ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس ملک کے نظام تعلیم کو مکمل اسلامی بنائیں اور نئی نسل کے اعتقادات کی صحیح رخ پر تربیت کریں، ان کو تعلیم دیں، اور ملک کی نظام میں آئین کے باغیوں کے لیے ہمارے پاس کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ ملک کی معیشت تباہ ہو چکی ہے، ہم سے جھوٹ بولا جاتا ہے کہ ہم نے سالانہ مجموعی ترقی کی جو شرح ہے، شرح نمو، وہ 2% سے زیادہ ہے، یہ 2% سے کم ہے، اور اب تو ہم منفی میں جا رہے ہیں۔ 60% ہمارے برآمدات کا دار و مدار کپاس کی پیداوار پر ہے، اور اس سال کپاس کی پیداوار 60% کم ہو چکی ہے۔ گندم کی پیداوار میں کمی ہے، مکئی کی پیداوار میں کمی ہے، اور ٹڈی دل نے آ کر
रहा सहा बचा कुछ भी खत्म कर दिया है। पेट्रोल गायब हो गया है, हुकूमत की रेट खत्म हो चुकी है। आप एक रेट मुकर्रर करते हैं, पेट्रोल पंप वाले नहीं मानते उसको। कतारों के अंदर दूर दूर तक लोग खड़े हैं और उनको पेट्रोल नहीं मिल रहा है। इस कदर नाकामी से दो चार हुकूमत क्यों मुसल्लत है कौम के ऊपर? एतराफ करे कि वो धांधली के नतीजे में आए हैं, एतराफ करे कि वो हुकूमत चलाने की सलाहियत नहीं रखते, और दोबारा ये अमानत कौम को वापस करें। हम अपने मौक़िफ़ पे कायम हैं और उसके लिए हम अपने मौक़िफ़ पे किसी किस्म की तब्दीली और रद्द-बदल पैदा करने में का इम्कान को हम रद्द करते हैं। खुद ऐलान किया कि जी हम सारिफीन के बिल 3 माह के माफ़ कर देंगे, ऐसी बात कर ली और अभी तक माफ़ नहीं की जा रही। तो पब्लिक इस वक्त इंतहाई दबाव में है, इसलिए हमने अवामी मसाइल पर तवज्जो मरकूज़ रखी हुई है। मैं अपनी सारी गुफ्तगू जो आपसे कर चुका हूँ, आम आदमी की मुश्किलात इस वक्त हमारे मद्देनज़र हैं, उस पर हमें यकजहती का मुजाहरा करना चाहिए। अपोजिशन जमातों को इस हवाले से अपना भरपूर किरदार अदा करना चाहिए। आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में अफसोस के साथ कहता हूँ कि अपोजिशन जमातें वो किरदार अदा नहीं कर रही हैं जिसका कौम उनसे तवक्को और उम्मीद रखती थी या रख रही हैं। हाँ, जमीयत उलमा इस्लाम इस हवाले से अपनी जद्दोजहद जारी रखेगी, अवाम के शाना बशाना होगी और इंशाअल्लाह इस मुश्किल से कौम को निकालने के लिए अपनी तमाम तर तवानाइयाँ बरूए कार लाएंगी। इस दौरान में जब से ये कोरोना आया है, हमारे बहुत सी मोहतरम और प्यारे और मुखलिस साथी दुनिया से चले गए हैं। हमारे सूबाई असम्बली बलूचिस्तान के मेंबर, साबिक गवर्नर बलूचिस्तान सैयद मोहम्मद फजल आगा साहब, हमारे कौमी असम्बली के औरकज़ई इलाके से मेंबर कौमी असम्बली जनाब हाजी मुनीर आफरीदी साहब, औरकज़ई साहब, और मौलाना सदर अब्दुर्रहमान साहब, हमारे बड़े बुज़ुर्ग जो मैनचेस्टर में रहते थे, अल्लामा खालिद महमूद साहब जो हमारे शरई अदालत के जज भी रहे हैं। इसी तरह लाहौर में हमारे सूफ़ी मोहम्मद सग़ीर साहब, चौधरी इम्तियाज़ कमर साहब, राशिद इकबाल साहब, दारुल उलूम देवबंद के शेखुल हदीस मौलाना सईद पालनपुरी साहब, मस्तूम के मौलाना अब्दुल अजीज़ साहब, और इस तरह बहुत से हमारे साथी इन दिनों में वफ़ात पा चुके हैं। सबके लिए हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उनके अहल व अयाल को अल्लाह सब्र जमील अता फ़रमाए और जन्नत में उनको अल्लाह ताला आला मकाम अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी, इसमें कोई शक नहीं है कि राब्तों की भी ज़रूरत है, बाहमी मशावरत की भी ज़रूरत है। मेरे शहबाज शरीफ साहब से भी राब्ता हुआ है और मैं चाहता हूँ कि लीडर ऑफ द अपोजिशन की हैसियत से उनको मैं ये ज़रूर अर्ज़ करूँ कि वो तमाम अपोजिशन पार्टियों को राब्ते में लाकर एक मुश्तरका हिकमत अमली की तरफ जाएँ। मौलाना साहब ये फरमाएं कि ये दिलचस्प इत्तेफाक नहीं है, आप भी कह रहे हैं, ताजरों की भी आपने हमायत की, नारे ताजर तो कह रहे हैं ना कि कोई बंद नहीं होनी चाहिए, हर चीज़ खुली होनी चाहिए। तालीमी इदारों को भी खोलने की आप बात कर रहे हैं, मदारस के भी खोलने की आप बात कर रहे हैं। यही काम तो इमरान खान भी कर रहा है और उसने जो वस्ता रमज़ान से लेके लॉकडाउन में गर्मी की बात की, जिस तरह जो हमारे देहात महफूज थे वहाँ भी कोरोना चला गया। तो दोनों आप जो है वो उसी तरफ जा रहे हैं, जबकि माहिरीन जो है वो आप दोनों के बरखिलाफ जा रहे हैं। देखिए, मैं गुजारिश करूँ आपसे, जो वज़ीर-ए-आज़म के मनसब पर बैठता है उसकी बात आपकी या सोलंगी साहब वाली बात नहीं हुआ करती। वो रियासत को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। हम इस अफरा तफरी को किस लफ्ज़ से ताबीर करें कि हुकूमत का मौक़िफ़ कुछ और,
स्टेट का मौक़िफ़, फौज का मौक़िफ़, ISPR का मौक़िफ़ बिल्कुल उसके बरक्स कुछ और बाकायदा ऐलान किया जाता है उसका। ये भी नहीं कि किसी मशवरे का मोहताज। विफाक का मौक़िफ़ कुछ और, सूबे सिंध की हुकूमत का मौक़िफ़ कुछ और, सिंध सूबे का मौक़िफ़ कुछ और, बाकी 3 सूबों का मौक़िफ़ कुछ और। उन 3 सूबों के अंदर भी मुवाफ़क़त 100% नहीं है। आप बताएं कि रियासत के अज्जा की ये अफरा तफरी कौम को क्या पैगाम दे रही है। हम सिर्फ लोगों की हमदर्दियां हासिल करने के लिए बयान दें और फिर उसके बाद जो नुकसानात उसके हों उस पर हमें कोई परवाह नहीं। ये सारी वो चीज़ें जो हमने बयान की हैं, इस पर एक जामे हिकमत अमली की ज़रूरत है ताकि इस वबा से भी लोग बच सके और लोगों की जो मुश्किलात हैं उन मुश्किलात को भी दूर किया जा सके। जो लोग ऐसे हालात में आम आदमी की मुश्किल को दूर करने का रास्ता नहीं निकाल सकते, यही तो नाअहली की अलामत होती है। इस वक्त जो सूरत हाल पाकिस्तान के पड़ोसी ममालिक में हो रही है, चीन के साथ, भारत में कशीदगी जो है, नेपाल के साथ जो कशीदगी है, उसके अलावा हमारे अपने जो अंदर के हालात हैं और मकबूजा कश्मीर की जो सूरत हाल है, क्या इस तमाम सूरत हाल के तनाजुर में एक कौमी बयानिया, मुतफ़िक़ बयानिया के लिए क्या पूरी सियासी और उसकी क़यादत को इकट्ठा नहीं होना चाहिए? क्या ऐसा मसला आप नहीं देंगे? बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन मेरी हुकूमत नाअहल है, वो इस काबिल नहीं है कि वो ऐसी कौमी बयानिया की तरफ पेशरफ्त कर सके। वो तो आप मुल्क के अंदर देखें, तमाम सियासी पार्टियों ने, सबसे पहले हमने, यानी हमारी अपोजिशन का आप लेवल देख सकते हैं कि इस हुकूमत के खिलाफ हमारा मौक़िफ़ कितना सख्त है, लेकिन इसके बावजूद हमने कहा यह इंसानी मसला है, ये तिब्बी मसला है। हमने ताउन पेश किया, हर जिले में हमारी जमात इंतजामिया के पास बराह रास्त गई, हमारे रज़ाकारों ने अपना खिदमात पेश की। मजाल है कि उस तरफ से कोई इशारा भी मिल रहा हो कि वाकई तुम लोगों ने इतने बड़े बुलंद जगह पे जाकर तमाम इख्तलाफ से बाराताक होकर इस मुल्क और इस कौम की बेहतरी के लिए कुर्बानी दी है अपने मौक़िफ़ की, अपने मौक़िफ़ की तो नहीं, रवैये की, नरम रवैयों के साथ अपने हमें नहीं, कोई एहसास उनको नहीं है। तो ऐसी हुकूमत को आप चीन, इंडिया, नेपाल और इस खित्ते के, या अल्लाह बहुत बड़ी बात आप कर रहे हैं, किसी से तवक्को रखो तो वो इस काबिल भी तो हो ना। मेरे ख्याल में इस वक्त हमें जिम्मेदार पर बहस नहीं करनी चाहिए, वरना जिम्मेदार मुझे मालूम है कौन नहीं है, लेकिन मैं इस पर बात नहीं करना चाहूँगा। वो फिर अब्दुल वासी से आप बात कर लेंगे। खुदा हाफिज़, मेहरबानी। भाई साफ या हज़रात।